Okay, so these are the topics which we'll be covering today. I hope you are getting my screen. Everybody is getting my screen. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah. So these are the continuation with the proteomics part. In proteomics part, we have to learn these four topics: what is motif, pattern, fingerprint, and hidden Markov model. One by one, we'll learn what are those things are and how they are important. First, we'll take the word motif into the consideration. Motif is that part of the any sequence which you have mentioned. Okay, so if somebody says motif doesn't have any sequence pattern. Okay, or what you can say identifiers, whatever the identity you will put. For example, something like this. Now if I have given this sequence as a query to the some kind of a software, and I asked whether this is a sequence available or not in a query sequence, then this whole sequence should be called as a motif. Okay, so what is the ultimate aim of the motif? Motif can be any sequence, okay, which may be like this. Okay, any sequence. So motif का कोई particular पैटर्न या उसका कोई डेफिनेशन नहीं होता, इसलिए मोटिव को हमेशा याद रखिए। आपने जो सीक्वेंस सर्च करने को बोला या ढूंढने को बोला, दैट इज व्हाट इज अ मोटिव। ओके, बट motif is different from pattern. Okay, pattern is a very typical thing available in a sequence. Okay, now why there is a difference between motif and a pattern? As I already told you, in a motif it may be any sequence that you have given as an input query, and hence it is known as motif. But whenever I am saying pattern is available in a sequence in a very specific manner. Okay, in a very specific manner. That's why they are somewhere around the corner have been evolutionary related. Okay, they have been evolutionary related. इसलिए पैटर्न को हम नॉर्मल सीक्वेंस नहीं बोल सकते, दे हैव सम रिलेशनशिप विद ईच अदर। ठीक है, देन what is pattern? Pattern is a sequence, again is a sequence which has been which has been deduced which has been deduced in many species by मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ओके, सो पैटर्न क्या है थोड़ा समझ लीजिए। ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, वो विच हैज बीन डिड्यूस्ड इन अ मेनी सीक्वेंसेस बाय मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, यानी एक प्रकार का रिपीटेशन है। ठीक है, एक प्रकार का रिपीटेशन है। सो रिपीटेशन होने के कारण वो आपको रिलेटेड प्रोटीन सीक्वेंसेस में हमेशा मिलेगा। ठीक है, सो प्रोटीन्स विच आर बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर फैमिली शुड रिप्रेजेंट पैटर्न, है ना। अगर हम बोल रहे रिपीटेशन है तो किसी भी प्रोटीन में रिपीटेशन होता है, यानी वो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, और फैमिली में ही पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम अभी और डिटेल में देखते हैं क्या होता है। सो व्हाट आर द पैटर्न्स? Many important sequence features such as binding site or the active sites of the enzyme consist of only a few of the amino acids that are essential for protein function। देखो इसने बहुत important बोला कि किसी भी प्रोटीन में जो एक्टिव साइट्स होती है या बाइंडिंग साइट्स होती है, उसमें जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे काम में नहीं आते, उसमें से कुछ ही काम में आते हैं। ठीक है, सो those sequences which are very crucial must span in a pattern manner। okay, यानी उनको उनका पैटर्न कॉमन होना चाहिए उस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए। यानी अगर अमाइलेज है तो सारे अमाइलेज में वो पैटर्न आपको दिखेगा। अमाइलेज आप किसी का भी ले सकते हैं, बैक्टीरिया का ले लीजिए, फंगस का ले लीजिए, प्लांट्स का ले लीजिए, किसी का भी लेंगे आपको पैटर्न वहां पे कहीं ना कहीं कॉमन दिखेगा। सो दे आर बिल्ड by identifying these regions in a multiple sequence alignment। देखिए यहाँ पे मैं आपको शोकेस करता हूँ।
ये आपको जो दिख रहे हैं सारे ब्लैक लाइंस, फर्स्ट लाइन जो है वो कंटिन्यूअस है, दिख रहा है आपको, यानी कंप्लीट प्रोटीन सीक्वेंस। सेकंड वाला जो नीचे प्रोटीन है वो पार्शियल है, यानी यहाँ पे ब्रेक है, फिर भी वो इधर सीक्वेंस है, इधर सीक्वेंस से बीच का पार्ट छूट गया है। फिर आपको यहाँ पे भी अलाइनमेंट दिख रहा है, यहाँ पे भी अलाइनमेंट दिख रहा है, सारे पार्शियल है और ये कंप्लीट है। इन सब का सीक्वेंस अलाइनमेंट किया गया। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट में क्या हुआ, जब इतना पार्ट अलाइन हुआ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में, तो उसको और डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया गया फॉर व्हाट, पैटर्न। तो जब ये अलाइनमेंट देखी गई तो आपको एक पैटर्न मिला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है जैसे ए ए सी सी, यानी फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, ए ए या सी सी है। क्लियर, मींस अगर मैं इसको स्टैंडर्ड लेके चलता हूँ तो फर्स्ट अमीनो एसिड पोजीशन जो है, फर्स्ट अमीनो एसिड पोजीशन, वहां पे एक तो आइदर ए रहेगा या फिर सी रहेगा, राइट, ए या सी रहेगा। और ये पैटर्न बड़ा कंजर्व्ड है, दिख रहा है ना आपको, इसलिए देखिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है, दिख रहा है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट में, मींस फर्स्ट न्यूक्लियो फर्स्ट अमीनो एसिड विल ऑलवेज रिमेन ए और सी। देन सेकंड पोजीशन जो है, सेकंड पोजीशन पे आपको वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा दिख रही है, कहीं एल है, कहीं आई है, फिर एच है, फिर पी है। मींस ये हाईली कंजर्व्ड नहीं है, यानी ये पैटर्न कंजर्व्ड नहीं है, या उस सेकंड पोजीशन पे जो अमीनो एसिड है वो उतना अपने आप को मेंटेन नहीं रख रहा है, इसलिए उसको हमने क्या दिया हुआ है, एक्स। ठीक है, देन थर्ड पोजीशन पे अगर हम देखें तो थर्ड पोजीशन पे सारे वी है, यानी यहाँ पे कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं है, हाईली कंजर्व्ड अमीनो एसिड है थर्ड पोजीशन का, इसलिए आपको यहाँ पे हमने क्या दिया है, वी। फिर अगले जो चार है, 1 2 3 4, ये फोर सारे के सारे वेरिएबल है, राइट। यहाँ पे कोई भी कॉमन या कोई पैटर्न आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, इसलिए आपने क्या किया, एक्स इन इन सर्कुलर ब्रैकेट, है ना, उसको 4 नंबर दे देने, अगले 1 2 3 4 वैसे ही रहेंगे। एंड देन देयर डैश, देन देयर इज ई एंड डी। ये कोरुगेटेड है, देखिए ये ब्रैकेट अलग टाइप का है ना, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो जब आप पैटर्न क्रिएट करते हो किसी पर्टिकुलर मोटिव का, जो भी जो कौन होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। ये मोटिव कंजर्व है ना, इतना पार्ट तो कंजर्व है, ये सब अलाइन हो गए ना एक दूसरे से, इसलिए उसको हम कंजर्व बोल रहे हैं। तो जब आप किसी पैटर्न को डिजाइन करते हो किसी मोटिव को लेके जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो पैटर्न इल्यूस्ट्रेट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट। ठीक है, तो पहला जो है पहला जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, पहला स्क्वायर ब्रैकेट है आपके पास में, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में ए यानी एलानिन और सी यानी सिस्टीन। ठीक है, और इसको हमने ब्रैकेट में दे दिया है। ठीक है, एक्स, एक्स इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैटर्न कंजर्व नहीं है, इसलिए एक्स यानी एनी। वी यानी वैलिन, एंड एक्स4, एक्स4 यानी अगले सारे जो होंगे कोई भी रह सकता है। ठीक है, देन जो कोरुगेटेड ब्रैकेट है इसमें कोई भी रह सकता है, बट ग्लूटामिन और एस्पार्टिक एसिड नहीं रह सकता। समझ रहे, तो ये जो पैटर्न रिप्रेजेंटेशन है ये इस तरह से दिया जाता है, यानी अगर ए और सी होगा, ठीक है, तो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे, और अगर आइदर और रहेगा तो ग्लूटामिन और एस्पर्जिट को फिर आपको कोरुगेटेड ब्रैकेट में पुट करना है। अगर आपको कोई भी अमीनो एसिड उस जगह रखना है तो एक्स रिप्रेजेंट करेंगे। फिर वी जो है, अगर यहाँ पे वी है तो ये हो गया वी। अब ये जो बना दिस इज अ व्हाट इज अ पैटर्न। ठीक है, और ये पैटर्न एक फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पैटर्न क्या होता है, एक फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप देखेंगे कि कंजर्व डोमेन में या कंजर्व डोमेन को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको हमेशा पैटर्न की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम एक्चुअली कंजर्व डोमेन सर्च नहीं करते, हम सर्च करते हैं पैटर्न।
हर एक कंजर्व डोमेन का एक टिपिकल सीक्वेंस पैटर्न होता है और उसके बेसिस पे ही उसको डिटेक्ट किया जाता है। ये आपको समझ रहा है क्या सबको? इसमें सर कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है? No, sir. No, sir. कोई डाउट नहीं है? समझ लग गया है क्या बोल रहा हूं मैं? चलिए, तो इतना पार्ट हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे पहले कि हमको ऐसा मिलता है क्या। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपके पास में सीक्वेंस अलाइनमेंट होनी चाहिए, राइट? तो सीक्वेंस अलाइनमेंट में इन्होंने क्या किया, प्रोटीन्स को अलाइन किया है एक दूसरे के साथ। तो मैं एक प्रोटीन लेता हूं और मुझे इसका, ये जो प्रोटीन है इसका मुझे एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है। स्ट्रेटेजी डिजाइन कुछ इस तरह करनी है कि आ, मेरे पास एक ALDO प्रोटीन है, अल्डोलस प्रोटीन है ऑफ होमोसैपियन, और मैं इसकी पैरालॉगी स्टडी करना चाहता हूँ। समझ रहा है क्या? पैरालॉगी यानी क्या करना चाहता हूँ, बताएंगे कोई? पैरालॉगी करना चाहता हूँ यानी क्या करना चाहता हूँ? ऑर्थोलॉगस यानी क्या? अरे बोलो। ऑर्थोलॉगी मीन्स व्हाट? Between the species. ऑर्थोलॉगी इज बिटवीन द स्पीसीज, बराबर है। और पैरालॉगी मीन्स Within the species. रॉन्ग हो गया ना? ऑर्थोलॉगस यानी विद इन स्पीसीज, पैरालॉगी मीन्स बिटवीन द स्पीसीज, है ना? समझ रहे हैं ना? तो बिटवीन द स्पीसीज करना है हमको। तो अगर मैं बिटवीन द स्पीसीज कर रहा हूं तो मुझे क्लोज स्पीसीज एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना? अगर मुझे क्या ढूंढना है तो पैटर्न डिजाइन करनी है, तो मुझे क्या डिजाइन करनी है, पैटर्न डिजाइन करनी। पैटर्न डिजाइन करना यानी क्या, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, ठीक है? ALDA होमोसैपियन का है और ALDA बॉस टॉरस का है। मुझे ये बताइए दोनों का सीक्वेंस 100% सेम रहेगा क्या? नो सर। नहीं रहेगा, है ना? इसी तरह अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का भी हम बोल सकते हैं। तो पर फिर भी ALDA जो दोनों के हैं ये फंक्शन सेम करेंगे क्या? फंक्शन सेम करेंगे या नहीं करेंगे? आप बोलते सीक्वेंस सेम नहीं है, पर मैं पूछ रहा हूँ ओके सीक्वेंस ठीक नहीं, सेम नहीं है, ओके, फिर फंक्शन सेम करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए। अरे हाँ, वो सेम ही फंक्शन करेंगे ना, दोनों अल्डोलेज यही है ना, तो सेम ही फंक्शन करेंगे, राइट? बट अब आप बोलते हो कि 100% सेम नहीं है फिर भी फंक्शन करेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस में वेरिएशन है, सीक्वेंस में वेरिएशन है, पर फंक्शन क्या है, सेम है। बराबर बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ है ना? यस सर। हाँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप क्या बोल रहे हो कि अल्डोलेज ऑफ होमोसेपियन, अल्डोलेज ऑफ बॉस्टरस 100% सेम नहीं है सीक्वेंस वाइज। और आप ये तो जरूर बोल रहे हो कि अल्डोलेज ए जो बॉस्टरस का है वैसे ही अल्डोलेज ए ऑफ होमोसेपियन है फंक्शन वाइज। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि सीक्वेंस में वेरिएशन है, ओके, सीक्वेंस इज हैविंग सम वेरिएशन, बट उसका फंक्शन क्या है, सेम है। इसका और एक मीनिंग हो गया, थोड़ा समझने लायक चीज है। इसका मीनिंग ये है
कि सीक्वेंस varies in protein, sequence varies in protein, but function remains the same, है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? इसका मीनिंग ये ऐसे ही हुआ ना? हाँ या ना? यस सर। हाँ, सीक्वेंस वैरी हो गया प्रोटीन्स में, अलग अलग प्रोटीन्स में, बट फंक्शन रिमेन द सेम। इसका मीनिंग ऐसा हो गया कि जो प्रोटीन की सीक्वेंस है एंड पोजीशन है, पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, प्रोटीन के सीक्वेंस और पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड्स may vary some at some place, है ना, may vary at some place, but it does not affect the function। बराबर है कि नहीं? ये मीनिंग समझ रहे हैं आपको? प्रोटीन सीक्वेंस एंड उसके पोजीशंस ऑफ अमीनो एसिड्स अलग अलग स्पीसीज में एक ही प्रोटीन के लिए वैरी कर सकते हैं एट सम प्लेस, बट इट डज नॉट अफेक्ट द फंक्शन। समझा कि नहीं समझा? समझा है ये पॉइंट? समझा? यस सर। क्या समझा, थोड़ा बताएंगे? सब प्रोटीन का सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है पर फंक्शन सेम ही परफॉर्म करेंगे वो। हाँ, और पोजीशन मेन क्या है? पोजीशन। पोजी- हाँ, पोजीशन इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस तो कहीं भी वेरी कर सकता है ना, पर जो पोजीशन है वो बहुत मैटर करेगी। और पोजीशन स्पेसिफिक चेंजेस जो है वो फंक्शन को चेंज कर रहे या नहीं कर रहे? पोजीशन स्पेसिफिक चेंजेस इज रियली चेंजिंग द फंक्शन? यस और नो? नो सर। नो। समझे? यानी 33 नंबर का अगर एक एलानिन है और ये प्रोटीन, सॉरी ये अमीनो एसिड एक्टिव साइट का पार्ट है, ठीक है, यानी ये कंजर्व डोमेन है। कंजर्व डोमेन का 33 नंबर का एलानिन अगर एक्टिव साइट में इन्वॉल्व हो रहा है और सबस्ट्रेट बाइंडिंग फंक्शन कर रहा है, ठीक है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग फंक्शन कर रहा है, ये किसके अंदर है? होमो सैपियन के अंदर। और फिर से यही प्रोटीन मैं एनालाइज कर रहा हूं जिसमें 33 नंबर पे मुझे प्रोलीन मिला, ठीक है, प्रोलीन मिला, और ये भी सेम एक्टिव साइट ही है, ठीक है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, बट किसकी है? बॉस की है। तो आप क्या बोलोगे? आपको क्या समझा? चेंजेस आ गए ना उसके अंदर, हाँ या ना? यस सर। यस। वहां पे 33 नंबर पे एक ऐसा प्रोटीन है जिसका अमीनो एसिड है जिसका नाम एलानिन है, और बॉस्टारस में उसी 33rd पोजीशन पे प्रोलीन है, फिर भी फंक्शन चेंज हो नहीं रहा। इसका मतलब है कि आपका जो पैटर्न मिलेगा आपको, पैटर्न ऑफ एक्टिव साइट, पैटर्न ऑफ एक्टिव साइट इन होमो सैपियन वर्सेस बॉस्टारस will remain same or not। तो अगर ऐसा है तो फिर पैटर्न जो मिलेगा आपको एक्टिव साइट का होमो सैपियन वर्सेस बॉस्टारस का, वो सेम रहेगा कि अलग रहेगा? सेम मिलेगा कि अलग मिलेगा? पैटर्न विल बी डिफरेंट, है ना, पैटर्न विल बी डिफरेंट। अभी यहाँ पे हमने देखा ना, देखो ना, समझ रहे? यहाँ क्या मिला? ए और नीचे क्या मिला? सी। फिर भी ये दोनों एक ही फंक्शन कर रहे हैं ना, ये सारे चारों प्रोटीन एक ही फंक्शन कर रहे हैं ना, सीक्वेंस वैरी कर रहा है, पर आपने ये देखा कि सीक्वेंस में वेरिएशन होने के बावजूद भी फंक्शन सेम है।
इसलिए ये पैटर्न जो है इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहा है क्या? हाँ या ना? ये जो पैटर्न है ये सबको रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसको पैटर्न कहा गया। क्योंकि अगर मुझे ऐसा इंडिविजुअली रिपोर्ट करना रहता तो फिर मैं शायद इनको ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए मुझे इसको पैटर्न में रिप्रेजेंट करना पड़ा। तो यहाँ पे भी देखिए, अब आपको अगले टाइम जब इस पैटर्न का पोजीशन देना पड़ेगा तो ऐसा देना पड़ेगा 33 पोजीशन ALA डैश, क्या रहेगा? 33 पोजीशन प्रोलीन। प्रोलीन, हाँ, ALA 33 ALA डैश प्रोलीन। यानी ये दोनों भी रहे तो भी फंक्शन कौन सा रहेगा? सेम। सेम, कौन सा? सबस्ट्रेट बाइंडिंग। सबस्ट्रेट बाइंडिंग, बराबर, इन अल्डोलेज। समझ रहे हैं आपको? हाँ, इस तरह से। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये पैटर्न में पुट किए जाते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ऐसा ही हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पैटर्न है, कहाँ कहाँ मोटिव्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ कंजर्व्ड रीजन्स आ रहे हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से चेक करते हैं। मैंने एक अल्डोलेज ए का होमोसेपियन का प्रोटीन सीक्वेंस लिया, कॉपी किया और ब्लास्ट कर रहा हूँ। ब्लास्ट कर रहे हैं और अब मैं कौन सा एनालिसिस करने वाला था, पैरालॉगस या ऑर्थोलॉगस? पैरालॉगस। पैरालॉगस यानी बिटवीन द स्पीसीज करना है, विद इन द स्पीसीज नहीं करना है। तो मैं एक ऑर्गेनिज्म लेता हूँ, बॉस्टोरस, ठीक है? फिर और एक बढ़ा देता हूँ, मंकी, चिंपांजी। चलो 3 ले लेते हैं। अभी 3 ऑर्गेनिजम्स के अंदर के मुझे प्रोटीन्स चाहिए, तो मैं 1 बाय 1 उनको आइसोलेट करूंगा, ठीक है? अगर मुझे 1 बाय 1 करना है तो मैं क्या करूंगा? सर एक्सक्लूड पे क्लिक करेंगे। एक्सक्लूड। तो सबसे पहले हम नीचे वाले पे एक्सक्लूड कर देंगे, प्रोटीन ब्लास्ट करेंगे, शो रिजल्ट इन न्यू विंडो, एल्गोरिथम पैरामीटर, हमको टॉप 10 दिखाइए, ब्लास्ट करिए। तो अब हमको पहला प्रोटीन मिलेगा जो पैरालॉगस है हमारे अल्डोलेज ऑफ होमोसेपियन के साथ में। इसको लेके हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करेंगे और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से हम ढूंढेंगे कि हमारे पास में पैटर्न क्या आता है। टेकिंग टाइम। देखिए हमको ये करना है, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है? सबको एक दूसरे के साथ में अलाइन करके देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से या कौन से रीजन में पैटर्न ढूंढने को हमको मिल रहा है, ठीक है? तब तक आगे का कर लेते हैं, इसको एक्सक्लूड छोड़ देते हैं, इसको एक्सक्लूड करते हैं, दूसरा हो गया, इसको एक्सक्लूड, इसको पकड़ लेते हैं, तीसरा। इस तरह से तीनों चलते जाएंगे। इसका रिजल्ट आ गया है, कितना परसेंट मैच हुआ? 100% क्वेरी कवर, 96% मैच हुआ। इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको जो सीक्वेंस मिला ये आपको फास्टा फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है? इसको हम डाउनलोड में जाएंगे, फास्टा अलाइन सीक्वेंस लेना है, ठीक है? कंटिन्यू।
ओपन, इसको रीनेम कर देते हैं बॉस्टोरस। सेकंड वाला देखते हैं ये किसका है, मंकी का है। मंकी, तीसरा है पैन ट्रोग्लोडाइटिस यानी चिंपांजी। चिंपांजी और आखिरी में चाहिए वो है अल्डोरेसिया होमोसेपियन। अब बताइए क्या करेंगे, हमको मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए? नाम भूल गए? मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए कौन सा प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं? अरे बताइए। क्लस्टल डब्लू भूल गए? क्लस्टल डब्लू हम करेंगे, कॉपी करेंगे इसको और हम क्लस्टल डब्लू में जाएंगे। क्लस्टल डब्लू मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पे है ना, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट क्लस्टल डब्लू पेस्ट कर देंगे। कौन सा सेट लेंगे, प्रोटीन या डीएनए? प्रोटीन। प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन से दिख रहे हैं ना, सिंगल लेटर कोड से सारे। देन एग्जीक्यूट मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। देखिए अब आपको बहुत अच्छा से मैच मिल रहा है। अब आप देखेंगे तो पैटर्न्स आप यहाँ पे ढूंढ पा रहे हैं आराम से। धीरे 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 आपको कुछ कुछ पैटर्न्स मिल रहे हैं और पैटर्न्स में वेरिएशंस भी है। जैसे देखिए यहाँ पे एक वेरिएशन होमोसेपियन में जी है ना। तो मैं अगर आपको बोलूं कि आपको एक पैटर्न बनाना है और वो पैटर्न इसके जैसा मैच हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं? तो इस पैटर्न को आप यहां से बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, इतने वाले को लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे वाला को भी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी चलो यहां से बनाते हैं, यहां से कितने पार्ट का बनाते हैं। तो जो पहली पोजीशन है वो क्या है, क्या है पहली पोजीशन?
आर आर है। तो अगर मैं इसका पैटर्न बनाना चाहता हूं तो क्या रहेगा फिर इस फॉर्मेट के हिसाब से? ब्रैकेट में डाल देना चाहिए क्या? यस सर। नहीं, ब्रैकेट में क्यों डालेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, दो अलग अलग नहीं है इसलिए ब्रैकेट में नहीं डाल सकते। डायरेक्ट आएगा ना? हाँ। समझ रहे कि नहीं? डायरेक्ट आएगा, पूरे इसमें आर है, फिर उसी तरह वी भी डायरेक्ट आएगा, यस सर। एन भी डायरेक्ट आएगा, पी भी डायरेक्ट यस आएगा, सी भी डायरेक्ट आएगा क्या? सर, नहीं ब्रैकेट में नहीं। आ सकता है। हाँ, तो पहले कोड क्या आएगा? आर वी एन पी। ठीक है, समझे? आर वी एन पी, आर वी एन पी अगर कंटिन्यूअस है, देखो क्या वो लिखा है, देखो अगर कंटिन्यूअस है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? एक्स इंटू फोर। एक्स। एक्स इंटू फोर, ऐसा लिखना पड़ेगा क्या? पक्का है क्या? पर या आर वी एन पी लिखना पड़ेगा? सर आर बी एन सी एन पी लिखना पड़ेगा। हम्म, समझा ना? आर वी एन पी ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद में डैश आएगा, फिर क्या आएगा ब्रैकेट में? सी और जी। हाँ, सी और जी। कौन सा ब्रैकेट लेंगे? सर स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट, और सी और जी पुट करेंगे। समझे? सेम यहाँ पे भी देखो वैसे ही आ रहा है पैटर्न। ये बहुत क्लोज सीक्वेंसेस है, इसलिए इसके पैटर्न बहुत ज्यादा, मोटिव इसके बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, पर अगर आप डिस्टेंट लेंगे ना, देखो अब हम एक डिस्टेंट करके देखते हैं, डिस्टेंट करके देखेंगे। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस जाते हैं। ठीक है, ये तो बहुत क्लोज थे ना सब, बॉस मंकी और चिंपांजी, हाँ है ना? यस सर। बहुत क्लोज है। अब हम क्या करते हैं, एक थोड़ा दूर वाला बंदा उठा के लाते हैं, ज़ेब्रा फिश। मुझे एक चीज बताइए, पैटर्न अभी हम सर्च कर रहे हैं, पैटर्न पैटर्न ढूंढने के लिए क्लोज स्पीसीज एनालिसिस करना अच्छा रहेगा कि डिस्टेंस स्पीसीज एनालिसिस करना अच्छा रहेगा? क्लोज स्पीसीज या डिस्टेंट स्पीसीज? मुझे लगता है डिस्टेंट स्पीसीज करना चाहिए। उससे क्या होगा, जो वेरिएशंस है वो पता चल जाएंगे, और मैक्सिमम जो सिमिलैरिटीज है वही आपको पैटर्न देगी। तो यहाँ पे मैं भी जेब्रा फिश ले रहा हूँ। ठीक है, जेब्रा फिश का अल्डोलेज ए जीन उठा के मैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करूंगा, और उसके बाद में देखता हूँ कि मेरे पास क्या पैटर्न आता है। ठीक है, जेब्रा फिश इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, लास्ट। अब आ गया, अब थोड़ा सा वेरिएशन दिख रहा है हमको, दिख रहा है ना? देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन है, पर हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न हो, बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव हो, तो यहाँ पे आपको वेरिएशंस आने के चांसेस दिख रहे हैं। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या करेंगे फिर, पहला कौन सा रहेगा? क्यू। हाँ, पहला क्यू है, सेकंड, के। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में ए टी। बराबर, फिर डी। डी डी जी, राइट। फिर आया आर और के, किसमें आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर। फिर ये वीपी, एक्स। हाँ वीपी, वीपी एक्स क्यों आएगा?
नहीं सर, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा स्क्वायर बी और ब्रैकेट पी। में आएगा, ये आएगा एफ, फिर आएगा यहाँ पे ब्रैकेट में डी एस, फिर यहाँ पे आएगा डी क्यू, इस तरह से वो चलते जाएगा। ठीक है, आप इसमें देखिए कहीं पे भी ऐसी एम्बिग्यूटी नहीं है, यानी ऐसे बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं है किसी में, इसलिए कोरुगेटेड ब्रैकेट जो है ना वो कम है ना, कोरुगेटेड ब्रैकेट जो आते हैं वो आपको नहीं दिखेंगे यहाँ पे। इस तरह से आप आराम से उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है पैटर्न, आपको समझा भी, ये पैटर्न जो इन्होंने बनाया आप बना पाते हो ना, समझ रहे, बना पाएंगे ना आप? सो Yes, sir. हाँ बना पाएंगे ना। व्हेन क्रिएटिंग अ पैटर्न कंजर्व्ड मोटिफ इज यूज्ड, कभी भी पैटर्न बनाने के लिए कंजर्व मोटिफ यूज करना पड़ता है। अभी तक हमने ये चीज नहीं सीखी कि इसमें से कौन सा पार्ट कंजर्व्ड है ना, समझा समझा क्या सबको? हम तो रैंडमली ले रहे हैं ना, समझ रहे हैं सबको? हमने ये जो रीजन लिया ये रैंडमली ले लिया, हमको थोड़ी पता है ये पार्ट कंजर्व्ड है या नहीं है। तो हमको वो कंजर्व्ड पार्ट ढूंढने के लिए ढूंढना पड़ेगा उसका कंजर्व डोमेन। ठीक है, तो कंजर्व डोमेन हम ढूंढेंगे थोड़ी देर बाद। ये पॉइंट आपको भी क्लियर हो रहा है ना? सो द पैटर्न इलस्ट्रेटेड हियर इज ट्रांसलेटेड एज 11, ये सब मैंने क्लियर कर दिया। अब एक बार आपने मोटिव ढूंढ लिया, मोटिव कैसे ढूंढते हैं कैसे करते हैं आपको समझ गया ना, ये जो टेक्निक सिखाई मैंने इससे आप समझ गए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। हाँ, अब प्रोफाइल पे तरफ जाते हैं, पैटर्न हमको समझ गया, अब प्रोफाइल। ठीक है, देखो ये प्रोफाइल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एफ पी वाई वाई एफ पी एल पी, तो ये प्रोफाइल है उसका। प्रोफाइल इज यूज टू मॉडल प्रोटीन फैमिलीज एंड डोमेन्स। देखिए अल्टीमेटली हम ये क्यों पढ़ रहे, पैटर्न प्रोफाइल ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी प्रोटीन को हम पर्टिकुलर फैमिली या डोमेन में डाल सके। मैं जैसे आपको एक चीज समझाता हूँ उसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में हमको मार्क्स कितने परसेंट से डिसाइड होते हैं? हम कितने से परसेंट डिसाइड करते हैं? 100 से, राइट, है ना? तो 100 में अगर कोई 33% लेता है तो हम बोलते हैं उसको बाउंड्री पे पास हुआ। अगर वो 60 के ऊपर जाता है तो बोलते हैं फर्स्ट क्लास में पास हुआ। अगर 59 से लेके 34 तक हुआ तो हम बोलते हैं सेकंड क्लास में पास हुआ, है ना? और जो 60 के 75 के ऊपर जाता है हम उसको बोलते कि अ, अच्छा स्टूडेंट है, मेरिटोरियस है, इस तरह से। तो ये हम कैसे कर पा रहे हैं, उनको क्लासीफाई कर पा रहे हैं, उनको स्कोर कर पा रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम उसकी फैमिली या उसके ग्रुप में डिसीजंस ले पा रहे हैं ना। यहाँ पे भी वैसे ही है। प्रोफाइल्स क्या बताती है? ये बताती है कि आपका प्रोटीन का मॉडल किस तरह से बनाया, उसके डोमेन का मॉडल किस तरह से बनाया। So they are built by converting multiple sequence alignment into position specific scoring system, है ना? हमने पढ़े हैं पहले, याद होगा तो, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट पीएसएसएम किया था ना हमने। So amino acid at each position in an alignment are scored according to the frequency with which they occur। समझ रहा है क्या? देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। देखिए ये सारे 20 टोटल 20 अमीनो एसिड्स है, दिख रहे हैं, ए से लेके सारे नीचे तक, ए बी सी डी एफ जी सारे 20 अमीनो एसिड्स है। ठीक है, अब हमने जब ये 7 सीक्वेंसेस अलाइन किए कुछ इस तरह जैसे यहाँ पे किए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेता हूँ ये वाला, ठीक है, या फिर फर्स्ट अमीनो एसिड लेते हैं ये वाला। तो फर्स्ट अमीनो एसिड पे 20 अमीनो एसिड्स में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बताएंगे? जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे पास में, उनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिली आपको पहले पहले पोजीशन पे? एम। एम, समझा क्या आपको? फिर यहाँ थर्ड पोजीशन पे देखो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिली?
Y। और H भी है, दिख रहा है ना? हाँ है ना? यस सर। हाँ, पर Y ज्यादा है और उसके बाद में H है, ठीक है? यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, समझ रहा है ना? इसमें क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यानी इसमें डेफिनेटली अगर मैं पहले वाली पोजीशन को कंसिडर करूं तो उसका जो स्कोर होगा और Y का जो स्कोर होगा थोड़ा कम होगा, राइट? Y का स्कोर कम होगा ना? यस सर। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट इन्होंने किया है, इसमें जो पहली पोजीशन है उसमें एक बार F आया, फिर दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार आया, चौथी बार आया, 5 बार। 5 बार F है, एक बार Y है और एक बार L है, ठीक है? 5 बार F है, समझा? एक बार Y है और एक बार L है। इसलिए पहली पोजीशन पे बाकी के जितने भी अमीनो एसिड्स है अदर देन F, Y और L, इनका स्कोर निगेटिव में है, ठीक है? इनका स्कोर किसमें? निगेटिव में है। वाइल F का स्कोर पॉजिटिव में है, स्कोर है 60, ठीक है? 60। फिर उसके बाद में है L और Y। L का भी स्कोर उन्होंने दिया है यहाँ पे 14 और Y का स्कोर दिया है 0, ठीक है? इस तरह से उसका स्कोरिंग सिस्टम उन्होंने यहाँ पे पुटअप किया है, इसको बोलते हैं पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिसेस। इसका मतलब ये है कि पहले पोजीशन पे कौन रह सकता है सिर्फ, या कौन ज्यादा मिलता है? F। F। यानी F की रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, पर कभी कभी आपको Y और L भी मिलेगा, इसलिए उसको प्रोफाइल में इस तरह पुट किया जाता है। समझ रहे हैं क्या कि ये प्रोफाइल कैसे बनाया उन्होंने? तो ये प्रोफाइल है कि अगर आपका ये प्रोफाइल यानी ये प्रोफाइल मान के चलते ये सीक्वेंस पूरा जो है ये अल्डोलेस के एक्टिव साइट का प्रोफाइल है, तो वो ये डेफिनेटली कहेंगे कि पहला अमीनो एसिड हमेशा कौन सा रहना चाहिए? कौन सा रहना चाहिए? F। F। समझा क्या? अगर आप बोल रहे हो कि अल्डोलेस का एक्टिव साइट का प्रोफाइल आप बता रहे हो, तो एज पर स्टडी अभी तक के हमको पहला अमीनो एसिड हमेशा F मिला है, ठीक है? तो इस तरह से उसका प्रोफाइल बनाया जाता है और ये प्रोफाइल के बेसिस पे सर्च करना बड़ा आसान हो गया ना। हमने उसको मार्कर की तरह बता दिया कि अगर पहले अमीनो एसिड F है तो हो सकता है कि वो अल्डोलेस का एक्टिव साइट बाइंडिंग साइट हो, फिर और ऐसे आते जाएंगे, ठीक है? और धीरे धीरे आप उसकी पोजीशन कंफर्म करते जाएंगे। So amino acids at each position in an alignment are scored according to the frequency with which they occur, ठीक है? बराबर है। Substitution matrices such as Blossom matrices can be used to add evolutionary distance weighing these scores। इसके बेसिस पे आप फिर उनको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या इवोल्यूशनरी मैट्रिक्स भी लगा सकते हैं, वेट मैट्रिक्स। So example of dataset that are used profiles to classify proteins include CDD, HAMAP, ProSite, Conserved Domain Database BLAST, HapMap है, ProSite है, ये सारे जो है ये exactly यही काम करते हैं, प्रोटीन के अंदर में प्रोफाइल ढूंढते हैं और प्रोफाइल के बेसिस पे अगर आपका प्रोफाइल किसी डोमेन के साथ मैच हो गया तो वो बोलते हैं कि इस प्रोटीन के अंदर ये पर्टिकुलर डोमेन है, ठीक है? समझा क्या? आपको ये पॉइंट समझा है क्या? ये है पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिसेस या बोलेंगे प्रोफाइल। नेक्स्ट फिंगरप्रिंट्स। अब जब एक प्रोफाइल ढूंढ ली, दूसरी प्रोफाइल ढूंढ ली, तीसरी प्रोफाइल ढूंढ ली, तो ये अल्टीमेटली आपको मोटिव देंगे। हर एक प्रोफाइल यानी एक मोटिव, ठीक है? हर एक प्रोफाइल यानी एक मोटिव। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग अलग मोटिव आपको जोड़ के एक पर्टिकुलर प्रोफाइल बना सकता है ना? या एक प्रोफाइल मिला के एक पर्टिकुलर मोटिव बना सकता है, और इन सब को अगर मैं जोड़ दूं प्रॉपर्ली फंक्शन वाइज तो फिर मेरे पास में कौन आएगा? फिंगरप्रिंट। किसी भी प्रोटीन को फैमिली में क्लासिफाई करने के लिए हमको उसकी फिंगरप्रिंट पता रहनी चाहिए। फिंगरप्रिंट से हमको ये पता चलता है कि वो प्रोटीन
कहीं म्यूटेट हो रहा है क्या, कहीं डाइवर्स्ड हो रहा है क्या, कि वही रह रहा है, ये हमको आसानी से पता चलता है। तो क्या है फिंगरप्रिंट? While single motif methods are good at identifying features in a protein, जब आप सिंगल मोटिव से ये पता कर लेते हो कि हर एक मोटिव का क्या फंक्शन है, उसके बेसिस पे आप प्रोटीन का फंक्शन बताते हो। बट मोस्ट प्रोटीन फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय नॉट बाय वन बट बाय सेवरल कंजर्व्ड रीजन। प्रोटीन की फैमिली इतनी आसानी से डिसाइड नहीं होती, आपको एक या एक से ज्यादा कंजर्व डोमेन उसके अंदर स्टडी करने पड़ सकते हैं, विच में ऑकर इन अ सर्टेन ऑर्डर। देखिए ये सर्टेन ऑर्डर में है, देखो मोटिव नंबर 1, मोटिव नंबर 2, मोटिव नंबर 3, और हर एक मोटिव एंड एक कंजर्व डोमेन। सो आइडेंटिफाइंग दीज रीजन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट का काम ही ये है कि इन सब प्रोफाइल्स को, सॉरी मोटिव्स को ढूंढे और इन सबको जोड़ के जो मिलेगा वो बनेगा फिंगरप्रिंट। यानी उस प्रोटीन में ये 3 एक्टिविटीज है, यहाँ से वो शोकेस कर रहा है। सो फिंगरप्रिंट्स आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल शॉर्ट कंजर्व्ड मोटिव्स। तो फिंगरप्रिंट अल्टीमेटली क्या है वो बता रहा है। फिंगरप्रिंट है बहुत सारे छोटे छोटे कंजर्व मोटिव्स का ग्रुप and which are drawn from the sequence alignment, है ना। देखो यहाँ पे दिख रहा है 1, 2 और 3। each motif is then converted into an individual profile। हर एक मोटिव का क्या करा जाता है फिर एनालिसिस में, प्रोफाइल एनालिसिस, and that gives a fingerprint signature। फिंगरप्रिंट की सिग्नेचर बन जाता है। देखो यहाँ पे बराबर किया उन्होंने, आपको ऐसा दिखेगा भी, ठीक है। फिंगरप्रिंट सिग्नेचर, ये आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे समझ आएगा, ऊपर में ये सीक्वेंस वैरी कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे एफ एफ वाई वाई है, पर नीचे में देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू है, ऊपर पी 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 एल एल वी 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 आई वी वी ऐसा है, पर नीचे में अगर आप थोड़ा ध्यान देखेंगे तो इतने इसमें इतना पार्ट बिल्कुल कंजर्व्ड है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, 101% हुआ। सो ये जो रेड में दिया है यार, यूनिकली कंजर्व्ड इन क्लोराइड चैनल प्रोटीन 3 सब फैमिली, यूनिकली कंजर्व्ड है, एकदम टिपिकली कंजर्व्ड है, कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ। और ब्लू वाला जो ये वाला सेक्शन है जिसमें रिलेटिवली वेल कंजर्व्ड है, रिलेटिवली वेल कंजर्व्ड है, कुछ कुछ म्यूटेशन है। देखिए यहाँ पे जैसे वी 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 है तो यहाँ एफ 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 है, यहाँ पे के है, यहाँ पे आर 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 है। तो रिलेटिवली वेल कंजर्व्ड है भी है और स्पेसिफिकली कंजर्व भी है, ठीक है। सो एक बार आपको उसका फिंगरप्रिंट पता चल जाए, ठीक है, तो फिर आप उसको हिडन मार्कोव मॉडल से स्टडी करते हो। सो हिडन मार्कोव मॉडल आर यूज्ड बाय मेनी डेटाबेसेस, ठीक है, लाइक प्रोफाइल्स, दे कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट इनटू पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग सिस्टम। हिडन मार्कोव मॉडल अल्टीमेटली करता क्या है कि सीक्वेंस का अलाइनमेंट जब आप कर लेते हो तो उसके बेसिस पे जो स्कोरिंग आता है वो स्कोरिंग आप यहाँ पे स्टडी करते हो, आपको दिखेगा नीचे। सो इट्स हिडन मार्कोव मॉडल अडेप्ट एट रिप्रेजेंटिंग अमीनो एसिड्स इंसर्ट एंड डिलीशन। हिडन मार्कोव मॉडल आपको ये बताता है कि कहीं इंसर्ट या डिलीशन तो नहीं हो गया, which means they can model entire alignment including divergent regions, okay। They are sophisticated and powerful statistical model very well suited to searching database for homologous sequences। देखिए यहाँ पे मैच स्टेट बता रहा है, पहले इसमें इंसर्ट पुट किया, फिर डिलीट स्पेस यहाँ पे हटा दिया, इस तरह से वो करते जाता है और दे रिप्रेजेंट्स की कहाँ कहाँ म्यूटेशंस हुए हैं, कहाँ कहाँ म्यूटेशंस नहीं हुए हैं। So this is a very important 3 things. One is pattern, another is profile, third is hidden Markov model, and along with that we have learned motif। अब हमारा मेन एम जो है वो है टू लर्न अबाउट द कंजर्व डोमेन्स। प्रोटीन के अंदर में कंजर्व डोमेन्स होते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो मैंने कल आपको बताया था
किसी एक प्रोटीन के अंदर वन और मोर कंजर्व डोमेन रह सकते हैं या नहीं रह सकते, मुझे बताइए। एक या एक से ज्यादा कंजर्व डोमेन रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? प्रोटीन के अंदर कंजर्व डोमेन कितने रहेंगे? एक रहता है या एक से ज्यादा रहता है? बताइए। प्रोटीन कंटेन्स ओनली वन और मोर कंजर्व डोमेन। प्रोटीन में वन कंजर्व डोमेन भी रह सकता है या ज्यादा भी रह सकते हैं। सबसे पहली बात ये चीज याद रखिए, ठीक है, एक या एक से ज्यादा रह सकते हैं। अब हमारा जो स्टडी का मैटर है वो है कि कंजर्व डोमेन को सर्च कैसे करा जाए। किसी प्रोटीन को, अगर किसी प्रोटीन का सीक्वेंस हमको मिल जाए तो वो उसका कंजर्व डोमेन कैसे ढूंढा जा सकता है, ठीक है। तो कंजर्व डोमेन का सर्च करने का एक तरीका है। उसके लिए करते क्या है, सबसे पहली बात स्ट्रेटेजी समझ लीजिए। देयर विल बी वन सर्वर, एक सर्वर रहेगा। दैट सर्वर विल बी लिंक्ड, दैट सर्वर विल बी लिंक्ड विथ कंजर्व्ड डोमेन डेटाबेसेस, ठीक है, जैसे टाइगर, सीडीडी, पीफैम, ऐसे ये अलग अलग क्या है कि डेटाबेसेस हैं जहां पे प्रोटीन की कंजर्व्ड डोमेन की इंफो अवेलेबल है, ठीक है, प्रोटीन की कंजर्व्ड डोमेन की इंफो अवेलेबल है। और जैसे ही आप इस सर्वर के ऊपर में अपनी क्वेरी पुट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, तो क्या होगा, आपका प्रोटीन पहले तो सर्च होगा, सर्च फॉर होमोलॉजी, यानी वो उसके लिए मैच ढूंढेगा खुद के लिए, और जिससे वो मैच होके आएगा उसका जो कंजर्व डोमेन है वो हमारे प्रोटीन के साथ में लिंक कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर वो ढूंढेंगे कि एग्जैक्टली कौन सी जगह कौन से मोटिव्स है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है कंजर्व डोमेन ढूंढने की। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्वर्स है वो है पहला नाम है इंटरप्रोस्कैन, ठीक है, फिर है पीफैम, फिर है कैथ, और एक और है सीडीडी ब्लास्ट। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द प्रोटीन एनालिसिस। तो पहले इंटरप्रोस्कैन, पीफैम, कैथ, सीडीडी ब्लास्ट, वन बाय वन हम करके देखेंगे क्या वो काम करते हैं। सबसे पहला जो लेंगे वो है इंटरप्रोस्कैन। इंटरप्रोस्कैन, अब इंटरप्रोस्कैन क्या करता है यहाँ पे आप देख लीजिए। दिस फॉर्म अलाउज यू टू स्कैन योर सीक्वेंस फॉर मैचेस अगेंस्ट इंटरप्रो प्रोटीन सिग्नेचर डेटाबेस, ठीक है, हमने सिग्नेचर समझी है ऑलरेडी। तो इंटरप्रो डेटाबेस के अंदर जितने भी प्रोटीन्स है उनके सिग्नेचर डेटाबेस से ये कंपेयर कर रहा है यूजिंग इंटरप्रोस्कैन टूल। Here you have to put a faster format sequence and you will be able to find out the conserved domain in your sequence, ठीक है। तो एक प्रोटीन सीक्वेंस लेते हैं। अब ये जो अल्डोलेज है इसके कौन से अमीनो एसिड्स एग्जैक्टली कंजर्व डोमेन में काम कर रहे हैं हमको पता नहीं है। चलो पता करते हैं।
सबमिट कर देंगे और सर्च। जैसे ही मैंने सर्च किया, यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है सर्चिंग। तब तक हम दूसरा देखते हैं। सेकंड है पीफैम। पीफैम प्रोटीन फैमिली डेटाबेस। PFAM is a large collection of protein families, each represented by multiple sequence alignment and hidden Markov model। इसमें याद रखिए, एक हाईली अनोटेड डेटाबेस है और एक मैन्युअली क्यूरेटेड है। ठीक है, दोनों से आपका प्रोटीन सर्च होगा। यहाँ पे सर्चिंग चली रही है, यहाँ पे रिजल्ट आया जैसा दिख रहा है। टेक टाइम। ओके, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं आपके प्रोटीन का कंजर्व डोमेन क्या है। तो आपके पास अभी सीक्वेंस है, इसलिए सीक्वेंस सर्च में जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी की कुछ चीजें में जाने की जरूरत अभी आपको नहीं है। सीक्वेंस सर्च में जाएंगे, यहाँ पे सीक्वेंस को पेस्ट करेंगे और गो, क्लिक ऑन गो। So now this software will help you to find out exact position of your conserved domain in your protein sequence, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहेगा आपके प्रोटीन के लिए टू मेक अ फंक्शन। ओके, फंक्शन बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, सबस्ट्रेट बाइंडिंग, कोफैक्टर बाइंडिंग, कोएंजाइम बाइंडिंग, इनहिबिटर बाइंडिंग, प्रोडक्ट रिलीज, मे बी एनीथिंग। सो नाउ यू गॉट द रिजल्ट। यहाँ आपने जो प्रोटीन दिया वो अल्डोलेज था, जो ग्लाइकोलाइटिक फैमिली से बिलोंग कर रहा है। देखिए अब उसकी फैमिली यहाँ पे शोकेस हो रही है, ग्लाइकोलाइटिक फैमिली। इसको अगर आप क्लिक करेंगे और इन्फॉर्मेशन आएगी, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। पहले जो डोमेन आपको मिला है वो ये है, देखिए फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट अल्डोलेज क्लास 1, यानी आपके अल्डोलेज ए प्रोटीन के अंदर में ये डोमेन है जिसका नाम है कंजर्व डोमेन है फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट अल्डोलेज क्लास 1। और ये जो कंजर्व डोमेन है वो कौन से अमीनो एसिड शुरू होकर कहाँ खत्म होता है ये लिखा हुआ है। 15th अमीनो एसिड से लेके 364 अमीनो एसिड तक जितने भी अमीनो एसिड्स है वो सारे के सारे आपके एक्टिव साइट्स में इन्वॉल्व है। और ये आपका मेटाबॉलिक, सर ये आपका कंजर्व डोमेन है। इसको आप क्लिक करेंगे आपको और डिटेल्स मिलेगी उसके बारे में। देखिए ये आपका फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट अल्डोलेज क्लास 1 कंजर्व डोमेन का डेटाबेस है। यहाँ पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिल रहा है, एग्जैक्टली वो कैसे काम करता है एंड ऑल। तो इसका अल्टीमेट यूज क्या है, इस सॉफ्टवेयर का अल्टीमेट यूज क्या है? सॉफ्टवेयर का अल्टीमेट यूज ये है कि आप किसी भी प्रोटीन का फैमिली या उसका कंजर्व डोमेन आराम से ढूंढ सकते हैं। बट कभी कभी इसी सॉफ्टवेयर से आपको फेलियर भी मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनका कोई भी मैच नहीं मिलता है और उनको हाइपोथेटिकल प्रोटीन्स भी कहा जाता है। तो हाइपोथेटिकल प्रोटीन्स के भी डेटा अवेलेबल रहते हैं पर वो किसी से मैच नहीं करते। इंटरप्रोस्कैन में भी आउटपुट्स आ गए हैं। देखिए इसने भी बोला कि फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट अल्डोलेज क्लास 1 आपका प्रोटीन फैमिली का कंजर्व डोमेन है, और ये पूरी इंफॉर्मेशन उसके उन्होंने दी हुई है। देन पीफैम हो गया, देन कैथ डेटाबेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथ डेटाबेस मैंने आप कोई बता सकता है फुल फॉर्म इसका?
कैथ मैंने कल पढ़ाया था। कल फुल फॉर्म बताया था मैंने इसका। भूल गए? अच्छा ठीक है। इसका फुल फॉर्म है क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी एंड होमोलॉजी। ठीक है, कैथ इसके बेसिस पे भी आप प्रोटीन की कंजर्व डोमेन फैमिली ढूंढ सकते हैं। ये ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ आना पड़ेगा नीचे में। व्हाट इज कैट 3D? यहाँ पे लिखा है सर्च कैट बाय प्रोटीन सीक्वेंस। पेस्ट कर दीजिए आपका सीक्वेंस एंड सर्च इट। उसको 32 डोमेन्स मिले हैं, इसको कैच करेंगे। देखिए यहाँ पे मिल रहा है अगेन फ्रुक्टोज बिस्फॉस्फेट अल्डोलेज, यानी आपका यह नॉन प्रोटीन जो है ये अल्डोलेज फैमिली से बिलोंग कर रहा है। इसको आप क्लिक करिए तो आपको एग्जैक्टली उसका कैट का फैमिली मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैट का फैमिली आ गया 3202070 और ये है एग्जैक्टली आपका कैट। दिख रहा है एग्जैक्टली आपका कैथ डोमेन, और ये अल्डोलेज है, पूरा अल्डोलेज प्रोटीन। देखिए कितना सुंदर है अल्डोलेज प्रोटीन। इसका कैथ का मीनिंग थोड़ा सा है जो समझना पड़ता है। कंजर्व डोमेन भी आपको समझना है, तो क्या मीनिंग है थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए देखिए ये सुपर फैमिली सुपर इम्पोजिशन है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर मैं एक प्रोटीन ले रहा हूं और वो अलग अलग स्पीसीज का है तो उसमें कुछ ना कुछ तो वेरिएशन जरूर होंगे। ठीक है, तो थोड़े से ना थोड़े से वेरिएशन के कारण उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा है ये स्ट्रक्चरल चेंजेस है। ठीक है ना, ये है सुपर इम्पोजिशन ऑफ ऑल प्रोटीन्स विच बिलोंग्स टू दिस फैमिली। ठीक है, ये चीज है उसके अंदर। तो जो अल्डोलेज है वो सुपर फैमिली में कैसे क्लासीफाई हुआ है ये हमको देखना है यहाँ पे। ये 3 का मीनिंग होता है, थोड़ा समझ लीजिए। 3 का मीनिंग है क्लास, 20 का मीनिंग है आर्किटेक्चर, अगेन 20 का मीनिंग है टोपोलॉजी, और फिर 70 का मीनिंग है होमोलॉजी। ये कोड्स है। ठीक है, और इसके अलग अलग मीनिंग्स है। क्या मीनिंग है स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं थोड़ा सा। अब इसका एंड देखिए। सबसे पहले एंड कहां से शुरू हो रहा है? देखिए यहां से एंड है, एंड से शुरू हो रहा है ये। और सबसे पहले जो स्ट्रक्चर उसने सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है बताएंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये कौन सा होता है ऐसा स्पाइरल स्पाइरल वाला? कौन सा होता है? कौन सा होता है स्पाइरल वाला? कौन सा होता है? हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स है वो। ठीक है, क्या है? अल्फा हेलिक्स।
तो ये जो एंड आपको दिख रहा है ना, एंड यानी उसकी शुरुआत अल्फा हेलिक्स से हुई। अगर आप अल्फा हेलिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ से शुरू होते 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 नीचे गया और फिर यहाँ पे टर्न आ गया, ये टर्न है, दिख रहा है ये टर्न या लूप। और फिर कौन आया, फिर आपको दिखा बीटा प्लेटेड शीट। देखो ये इतना पार्ट अल्फा हेलिक्स, देखिए अल्फा हेलिक्स कैसा है, हेलिकल है ना, ये देखिए पूरा हेलिकल ऐसा 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 होते आ रहा है, अल्फा हेलिक्स है। फिर टर्न्स एंड लूप्स है, और टर्न एंड लूप के बाद में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आया वो दिख रहा है, इतना बड़ा यहाँ पे, यहाँ से जा रहा है, ये देखिए यहाँ से शुरू होकर यहाँ आगे जा रहा है, ये है बीटा प्लीटेड शीट। फिर टर्न हुआ और फिर अल्फा हेलिक्स, है ना, फिर यहाँ आया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे छोटा टर्न एंड लूप, बीटा प्लीटेड शीट है, दिख रही है। फिर टर्न आया, फिर अल्फा हेलिक्स है। इसका मतलब है कि ये जो कंजर्व डोमेन फॉर्म कर रहा है, इसके लिए जो स्ट्रक्चर लग रहे हैं और जो क्लास है वो है अल्फा बीटा, यानी हर अल्फा के बाद में बीटा रिपीट हो रहा है और स्ट्रक्चरल के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया, ठीक है। और इसका शेप जो होता है ना, शेप के बेसिस पे भी होता है। आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर, क्लास तो आपने देख ली, फिर उसके बाद क्या दिख रही है, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में आप देखिए ये बंदूक की नाल की तरह खुला है, दिख रहा है आपको, देखो मैं आर पार चला गया उसके अंदर, है ना, दिख रहा है। तो ये बंदूक की नाल है और बीच में क्या है, एक हॉलो स्पेस है बंदूक की नाल की तरह, है ना। तो ये उसका आर्किटेक्चर है, ठीक है। आर्किटेक्चर में हम ये उसको बोल सकते हैं कि इट इज जस्ट लाइक अ क्या बोल सकते हैं, गन की बैरल, यानी इसको बोलेंगे अल्फा बीटा बैरल। क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा बैरल। गन के सामने में जो लगे रहते उसको बैरल बोलते हैं ना। तो ये अल्फा बीटा का क्लास है और जो शेप फॉर्म कर रहा है वो अल्फा बीटा बैरल, ठीक है, अल्फा बीटा बैरल। टोपोलॉजी जो है, टोपोलॉजी जो है उसकी अल्डोलेस के फैमिली से बिलोंग कर रही है, होमोलॉजी भी अल्डोलेस के साथ से बिलोंग कर रही है। इसलिए ये जो कोड होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो है ना 3.2020.70 इसका ये मीनिंग है, ठीक है। नंबर अलाइनमेंट 0 समरी। अब देखिए ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इन्होंने क्या किया है थोड़ा समझ लीजिए। अब मैंने ऑलरेडी आपको समझा है कि अल्डोलिस जो है ये बहुत ज्यादा फैमिलीज में मिलता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, जैसे बॉस टॉरस हो गया, चिंपांजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, मंकी हो गया, सभी में मिलता है। तो सभी में मिल गया तो भी मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, याद होगा तो, कि सेम होते हैं या नहीं, है ना। मैंने क्या बोला था, प्रोटीन के अंदर कंजर्व डोमेन सेम होते हैं या नहीं, तो आपने क्या बोला था, सॉरी ये नहीं था, ये वाला, ये वाला है ना, पोजीशन स्पेसिफिक चेंजेस। यहाँ पे देखिए 33 नंबर पे एलानिन है, तो यहाँ पे 33 नंबर पे कौन है, प्रोलीन है ना, होमोसैपियन का एचएस और इसका बीटी। तो यहाँ ये तो मैंने हाइपोथेटिकली बताया था, पर यहाँ रियल है, देखिए मैं आपको यहाँ शोकेस कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं आउटपुट्स, रियल आउटपुट क्या है थोड़ा समझिए, क्या है इसका मीनिंग, क्या है थोड़ा समझ लीजिए। ये जितने भी है ना ये सारे अल्डोलेज है, ठीक है, सारे अल्डोलेज है। चलो चेक करते हैं, ठीक है, ये आपका अल्डोलेज है, फिर ये भी आपका एक अल्डोलेज है, ये सारे अल्डोलेज है, सिर्फ कोड अलग अलग है उनके। हाँ, अब ये अल्डोलेज अगर हम देखते हैं तो उसकी पहली पोजीशन पे कौन है, एम है, ठीक है। दूसरी पोजीशन पे कौन है,
डैश है, उतना अच्छा रिस्पांस नहीं है। फिर तीसरी पोजीशन पे कौन है, टी है, बराबर। पर अगर आप थोड़ा और नीचे देखें, ये येलो लाइन से नीचे, तो कितने बार टी आया है देखो फिर, एक बार, है ना, एक बार आया, फिर दो बार, फिर तीन बार, ठीक है, कितने बार आ गया, तीन बार। फिर और बाकी अल्डोलेस के अंदर देखो तो टी के नीचे कौन है, पी। अब पी कितने बार आ गया देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार आ गया। इसलिए ये जो पी है ना, ये टी से थोड़ा बड़ा है, दिख रहा है आपको, समझ रहे हैं, इसलिए ये पी बड़ा है। इसका मतलब ये है कि थर्ड पोजीशन पे हमेशा कौन रहेगा, यानी पॉसिबिलिटी क्या है ज्यादातर किसकी रहने की, पी। पी की। और अगर मैं इसका पैटर्न बनाऊं तो क्या बनाऊंगा बताओ, अगर मैं इसका पैटर्न बनाऊं तो क्या बनाऊंगा बताइए, पैटर्न बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताइए ना। नहीं समझा, देखिए, सर स्क्वायर ब्रैकेट में पी टी ए। नहीं नहीं, फर्स्ट से बताओ, फर्स्ट से। फर्स्ट से एम। नहीं, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। देखिए वहां पे एम, जी और एक्स और एम है ना, एम जी एम, एम जी एम और एक्स, यानी एम जी और एक्स ये तीन ही है, समझ रहे हैं कि नहीं। यस सर। तो वहां पे कोरुगेटेड ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, कोरुगेटेड ब्रैकेट, और क्या लिखना पड़ेगा, एम जी एक्स। नहीं, वो यस। वो पूरे 18 अमीनो एसिड्स के नाम लिखने पड़ेंगे, और बोलना पड़ेगा कि इनके अलावा जो बचता है वो सब, नहीं समझा क्या, इनके अलावा जो बचता है वो सब, थोड़ा सा देखो मैं बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, एनी बट ग्लूटामिन और एस्पर्जिन, समझ रहे हैं क्या, नहीं समझा, कोई भी रह सकते हैं पर ये नहीं रह सकते, कौन से, समझा क्या, कोई भी रह सकते हैं पर कौन से नहीं रह सकते हैं, ग्लूटामिन और एस्पार्टिक एसिड। अब हमारे पास यहाँ भी तो सिचुएशन वैसी है ना, है ना, एम और जी है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोरुगेटेड ब्रैकेट में जो बचे हुए 18 अमीनो एसिड्स है उनके नाम लिखने पड़ेंगे, बराबर है कि नहीं, यस सर। ठीक है, इस तरह से। सर मतलब जो बचे वो नाम आएंगे, और जो नहीं है बट हाँ, डैश नॉट। बट एनी, एनी बट ग्लूटोमिन और एस्पार्टिक एसिड, समझे, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एनी बट वो पूरे 18 अमीनो एसिड्स, ठीक है, एनी बट ग्लूटामिन और एस्पार्टिक एसिड, यानी हमको इनके दो नाम डालने पड़ेंगे, यानी कौन से डालने पड़ेंगे, एम और जी, समझ रहे हैं क्या, सर एक्स भी डालना पड़ेगा ना। एक्स एन एनी होता है ना, एनी। ठीक है एनी सर। एनी होता है तो उसको नहीं डालने पड़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एस है, तो यहाँ पे भी कोरुगेटेड ब्रैकेट में क्या आएगा, एस, कोई भी पर ये इस तरह से, और फिर यहाँ पे भी आपको ए पी टी इस तरह से उसका पैटर्न आते जाएगा। आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि ये जो रीजन है ना, देखो ये रेड वाला, ये हाईली कंजर्व्ड है, दिख रहा है, ये हाईली कंजर्व्ड है। जब आप ऐसे अलग अलग लोगों को अलाइन करते हो ना, तब पता चलता है कि कौन सा पार्ट कंजर्व्ड है, तो ये कौन सा पार्ट है, कंजर्व्ड, ये हाईली कंजर्व। कंजर्व्ड है, और इसका पैटर्न बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डैश आ गई है, ये समझने लायक चीज है, और ये जो ग्राफ्स है ना, ये सुंदर ग्राफ्स है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि उस जगह डोमिनेंस किसका है, ठीक है, डोमिनेंस कितना है।
ये लाइन से डिनोट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो कंजर्व डोमेन में हमको समझ में आ गया कि इसका इवोल्यूशनरी कितना अलग अलग है। फिर इसमें फैमिलीज है, देखो अलग अलग। इसको मैं थोड़ा सा इलाबरेट कर देता हूँ। अब मैं अलग डोमेन में चला गया हूँ। देखो डाई, कौन सा है, डाई हाइड्रोपिरिमिडिन डिहाइड्रोजिनेज, समझ रहा है। इसका थोड़ा सा कैच देखेंगे अपन, ठीक है, क्लास देखेंगे, क्लास। देखो पर इसका क्लास सेम है कि अलग है। क्लास समझा ना, क्या है क्लास, यानी रिपीटेशन कैसा है। अल्फा हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स हो गया, फिर क्या आया, सर अल्फा हेलिक्स से पहले और उसके टर्न आया। बाद टर्न और फिर से अल्फा हेलिक्स। नहीं, ज्यादा अल्फा हेलिक्स नहीं है वो, देखिए ये भी टर्न ही है। ये इसको अल्फा हेलिक्स नहीं कहेंगे, ये क्या रैंडम कॉइल है, समझ रहे हैं ना। और फिर कौन आया, बीटा प्लीटेड शीट, ये दिख रही है बीटा प्लीटेड शीट, यहां से आगे गई, फिर इधर आई, फिर इधर आ गई, ये आ गई अल्फा हेलिक्स, फिर रैंडम टॉइल, फिर पर। इसीलिए वो दोनों सेम ग्रुप में क्लासीफाई हुए, समझा क्या, अल्डोलेज भी और ये एंजाइम भी, कौन सा, जिसका नाम डिहाइड्रोजिनेज, समझ रहे आपको। ये जितने भी हैं ये सब क्या है, स्ट्रक्चरल क्लस्टर, क्या है, स्ट्रक्चरल क्लस्टर, यानी इनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं आपको इसको बीटा बैरल बना के दिखाता हूँ। इसका ना मूव करने का एक तरीका होता है, अभी भी प्रोटीन इस तरह से मूव किया जाता है, ये माउस पकड़ लेना लेफ्ट बटन को और घुमाते रहना, तो देखिए एक छोटा सा बैरल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये गड्ढे में से अपन बाहर निकल रहे, दिख रहा है, ये बैरल है। इसने भी वैसा ही टेक्सचर फॉर्म किया, इसलिए वो इस फैमिली में क्लासिफाई है, ठीक है। ये हो गया, उसका डोमेन देख सकते हैं हम उसका, हाँ ये है, ठीक है, डोमेन। अब आपको समझा क्या, यहाँ आया डोमेन 3202070 दिख रहा है। 3 का क्या मीनिंग, अल्फा बीटा, ठीक है। 3 2.0 का मीनिंग है अल्फा बीटा बैरल, और 3 है 3.2.20.20 यानी टिम बैरल, ठीक है, टिम बैरल यानी उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। और 2.70 यानी ये अल्डोलेस क्लास 1 से, ये 70 यानी अल्डोलेस का फीचर है, ठीक है। चलो मैं आपको एक समझाता हूँ। अभी हमने किसके ऊपर क्लिक किया, सी के ऊपर, मैंने क्लास के ऊपर। तो इसमें जितने भी प्रोटीन आपको दिखेंगे उनका सबका क्लास कौन सा रहेगा, अल्फा बीटा। हाँ अल्फा बीटा, समझे ना। अभी आपको प्रोटीन का वो लेवल समझ में आ रहा है कि प्रोटीन को देखा अलग अलग तरीके से देखा जाता है। सबसे पहली बात है सीक्वेंस और दूसरी बात है स्ट्रक्चर। तो अभी आपके पास में अलग अलग शेप्स है, देखो सभी में जितने भी अभी प्रोटीन आपको शोकेस हो रहे हैं उनका क्लास कौन सा है, अल्फा बीटा। पर अब यहां से देखिए आर्किटेक्चर अलग हो गया, ये कौन सा है, अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स। फिर मैं इधर शिफ्ट हो जाता हूं, ये कौन सा है, रोल। अल्फा बीटा रोल, रोल जैसा दिख रहा है ना, देखो ये है अल्फा बीटा बैरल, यानी इसी के अंदर कौन होगा, इसके अंदर कौन होगा, अल्डोलेज, जो अभी अल्डोलेज। हाँ, ये है 2 लेयर सैंडविच अल्फा बीटा, ये है अल्फा बीटा सैंडविच, 3 लेयर सैंडविच, यानी कैसा है, अल्फा, वड़ा पाव होता है ना, वड़ा पाव, वड़ा पाव में हम उसको काट देते हैं, वड़ा को बीच में, सॉरी पाव को काट देते हैं और उसके बीच में वड़ा डाल देते हैं, तो ऊपर में भी पाव होता है, नीचे में भी पाव होता है, तो ए यानी पाव है और बी कौन है, वड़ा, इसलिए बोलते हैं उसको 3 लेयर सैंडविच, अल्फा बीटा अल्फा, यानी बीटा सैंडविच हो गया किसके बीच में, अल्फा और अल्फा के बीच में। अगर आप इसको और थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहते हैं तो यहां से दिख जाएगा, घुमाना पड़ेगा इसको,
देखिए सैंडविच क्यों बोला, दिख रहा है आपको? ये अल्फा हेलिक्स दिख रहे हैं, दो अल्फा हेलिक्स, दो अल्फा हेलिक्स दिख रहे हैं नीचे, और टॉप में दो अल्फा हेलिक्स दिख रहे हैं, और उसके बीच में कौन है? बीटा। इसलिए ये है अल्फा बीटा अल्फा सैंडविच। यानी दो बीटा या कोई भी एक बीटा दो अल्फा के बीच में कौन हो, क्या हो गया? सैंडविच। इसलिए उसका आर्किटेक्चर जो है, देखिए ये क्लास है हा? और ये क्या है? आर्किटेक्चर। यानी उसने फिर से एक ऐसा शेप बनाया कि जिसकी वजह से वो सैंडविच हो गया। फिर ये हो गया, बैक जाना पड़ेगा ऐसे। हाँ, यहाँ से समझ रहा है ना सबको? अल्फा अल्फा बीटा ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है उन्होंने खुद को कैसे रिपीट किया, ये होता है क्लास। समझा क्या? हाउ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिपीट्स देमसेल्फ इज नोन एज क्लास। आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्चर हाउ अल्फा एंड बीटा इन अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्टीमेटली फॉर्म्स द टर्शरी स्ट्रक्चर। ये जो दिखता है ना आर्किटेक्चर, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर। और टर्शरी के बाद आता है उसका टोपोलॉजी, यानी एग्जैक्टली उसने कौन सा शेप अक्वायर किया। एंड देन उसके बाद आता है होमोलॉजी, यानी वो किस सीक्वेंस मैच। ये ऊपर वाला जो है सीक्वेंस मैच है, सारे सीक्वेंसेस है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? देखिए सुपर फैमिलीज, क्लास, आर्किटेक्चर एंड टोपोलॉजी, सबको पॉइंट क्लियर हो गया? ये कैथ में आके आप जरूर स्टडी करिएगा, बहुत सुंदर है ये पढ़ने के लिए। इसको आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको समझेगा। ठीक है, तो यहां से हम आए थे और आगे गए थे। So what we have learned today, we have learned about the uh, uh, we have learned about the patterns, we have learned about the profiles, fingerprints, hidden Markov model and about the conserved domains. कैसे प्रोटीन्स के अंदर कंजर्व डोमेन्स होते हैं, कैसे उसको ढूंढा जाता है एंड ऑल। एक और लास्ट वो रह गया, दैट व्हाट इज वी हैव टू सी इज CDD ब्लास्ट। ये आपको एग्जैक्ट शोकेस करेगा कि कौन सी जगह पे आपका कंजर्व डोमेन है आपके प्रोटीन सीक्वेंस के अंदर। तो इस सीक्वेंस को मैंने यहां से उठाया एंड दिस इज योर कंजर्व डोमेन डेटाबेस ब्लास्ट, CDD ब्लास्ट। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हो? आप एक सीक्वेंस पुट कर रहे हो जिसका नाम अल्डोलेज ए है, इसका अंदर का आप कंजर्व डोमेन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ये करने के लिए आप एक कंजर्व डेटाबेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। इतने सारे डेटाबेसेस है, दिख रहे हैं आपको, और सब PSSM पे, पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिसेस पे डिपेंडेंट है। देखो, आप जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो CDD वाला ले सकता हूँ, NCB एक्यूरेटेड, PFAM ले सकता हूँ, स्मार्ट डेटाबेस ले सकता हूँ, जो आपको चाहिए आप ले सकते हैं। मैं CDD लेता हूँ और बोलता हूँ सबमिट। नाउ आई कैन सी द एग्जैक्ट amino acid position of the conserved domain. देखिए यहाँ पे आ गया, देखो कितना सुंदर है। मैंने आपको बताया था ना कि कैटालिटिक साइट होती है, एक्टिव साइट्स होती है। देखो यहाँ पे लिख के आ गया है, देख रहे हैं एक्टिव साइट्स। मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि एक्टिव साइट्स के लिए जो अमीनो एसिड्स लगते हैं वो क्लोज होते हैं, डिस्टेंट होते हैं, क्लोजली अरेंज्ड होते हैं या डिस्टेंटली अरेंज होते हैं, बताएं। एक्टिव साइट बनाने के लिए जो प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्लोजली अरेंज्ड होते हैं या डिस्टेंटली अरेंज्ड होते हैं? डिस्टेंटली। हाँ, देखो यहाँ पे बताया उसने, देखो ये अमीनो एसिड्स है, दिख रहे हैं छोटे छोटे छोटे, यहाँ पे है, फिर कोई एक यहाँ पे है, फिर 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 इन सब ने जब फोल्ड हो जाएंगे ना तो ये पास में आ जाएंगे। समझे ना? जब वो फोल्ड हो जाएंगे पास में आ जाएंगे और तब आपको वो कंजर्व डोमेन का एक्टिविटी देंगे। तो यहाँ पे उस आपको समझ में आता है। इसको अगर आप क्लिक करें तो ये आपको वहां तक लेके चले जाएगा CDD ब्लास्ट में।
देखिए यहाँ पे लेके आ गया, प्रोटीन डोमेन फैमिली में लेके आ गया सीधा। और आपके अल्डोलेज ए के अंदर में कौन सा डोमेन है, कौन सा डोमेन है, कौन सा है? बीटा अल्फा बैरल डोमेन। बीटा अल्फा, हमने यही पढ़ा था ना, बीटा अल्फा बोलो या अल्फा बीटा बोलो सेम ही है ना। कैट ने भी यही दिया था ना उनको, और टीम दे दिया था। यस सर। टीम क्या था, आर्किटेक्चर है ना, टीम आर्किटेक्चर बता रहा है वो। तो टीम यानी कौन, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है, ये डोमेन इनसे मैच कर रहे हैं और ये उसका फीचर है, ठीक है। इतने सारे ऑर्थोलॉगस सीक्वेंसेस उससे मैच कर रहे हैं, ठीक है, सुपर फैमिली है पूरी। और अगर मैं इसके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स में जाऊं या लिंक में जाऊं तो यहाँ से जा सकते, टैक्सोनॉमी में जाते पहले। तो ये टैक्सोनॉमी में नहीं, टैक्सोनॉमी में काम नहीं आएगा, CD472 में जाते हैं। ये एंट्रीज है एक्चुअली, ठीक है, टीम बैरल की। देखो अब ये पूरा कंजर्व डोमेन की इंफॉर्मेशन दे रहा है फैमिली वाइज, कि आपका प्रोटीन किस फैमिली से बिलोंग करता है, कैसे मैच किया उन्होंने, कैसे सर्च किया, दिख रहा है आपको? इतने सारे क्लस्टर मैप है आपके प्रोटीन के लिए। अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको और पढ़ेंगे तो और इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। जितना आप अंदर जा सकते हो उतना उसको आप इन्वेस्टिगेट करिए। दिस इज द थिंग। देन ये पीफैम है, प्रोटीन फैमिली डेटाबेस। यहाँ पे भी आपको उसके अलाइनमेंट दिख रही है, देखो पैटर्न तो आप कभी भी बना सकते हो, समझ में आ गया आपको पैटर्न बनाना, ठीक है। आप किसी का भी पैटर्न बना सकते हो, कोई भी रीजन का पैटर्न बना सकते हो। और ये देखिए अलग अलग है, बहुत दूर दूर के लोगों से भी कंपेयर किया है, दिख रहा है आपको, एंटीमेना, स्पोरफार्मेना, पुरपुरा, सिनेडे, इसे नाम भी नहीं सुने मैंने, इनके साथ भी वो मैच किए गए हैं। तो ये क्लस्टर फैमिली है उसकी, टाइगर के फैमिली के साथ में, ये टाइगर डेटाबेस है, इसने भी उसको रिप्रेजेंट किया है, देखो यहाँ पे मैच में अलग अलग लोगों के साथ में उसको मैच किया हुआ है। सो ये चार सॉफ्टवेयर बहुत काम के, पीफैम, कैथ, सीडीडी ब्लास्ट और कौन सा था, इंटरप्रोस्कैन, ठीक है। चारों से आपको कंजर्व डोमेन पता चलते हैं आपके प्रोटीन्स के, और आप आराम से उसको एनालाइज कर सकते हैं कि आपके प्रोटीन के अंदर कौन सा कंजर्व डोमेन अवेलेबल है, ठीक है। चलिए विल स्टॉप हियर, अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो दे कैन आस्क। सर मुझे ये पूछना था कि CADD क्या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ऐड होता है? CADD या CDD? सर CDD, हाँ, कंप्यूटर एडेड कंप्यूटर एडेड, ड्रग हाँ ड्रग हाँ डिजाइन। हाँ हाँ, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आएगा ना, वो आएगा, वो सबसे आखिरी वाला पार्ट है, एप्लीकेशन है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस पूछना है किसी को? चलिए ठीक है, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन, विल स्टॉप हियर।